Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is detention calm down starts from custody, not arrest. Why news recently in Biswajit Mandal versus Inspector Narcotic Control Bureau, the Kerala High Court ruled that the 24-hour detention period for producing an accused before a magistrate as outlined under Article 22 Clause 2 of the Constitution of India begins from the moment a person's liberty is effectively curtailed and not when the formal arrest is recorded by the police. Background of the case: the petitioner was taken into custody by Narcotics Control Bureau on January 25, 2025 at 3 p.m. following the detection of possession of contraband. However, his arrest memo was prepared nearly 23 hours later at 2 p.m. on January 26. He was then brought before the magistrate at 8 p.m. On January 26, more than 29 hours after his initial detention, the petitioner challenged his detention, claiming that the NCB has violated the 24-hour rule for producing an accused before a magistrate as prescribed under Article 22 Clause 2 of the Constitution. What were the court observations? Justice Bechu Korean Thomas, while delivering the judgment, observed that the 24-hour clock for producing an accused before the magistrate begins when their liberty is effectively curtailed and not from the time of the formal arrest. The court emphasized that the delay in recording of the arrest despite the accused being in custody constitutes an unrecorded period of detention. The court also highlighted that such delays could be used to mask custodial abuse and that the failure to record an arrest for prolonging interrogation without proper documentation can lead to human rights violations. It further emphasized that fundamental rights, especially those under Article 21 of the Indian Constitution, must be safeguarded at all times. What were the provisions involved? First, Article 22, Clause 2 of the Indian Constitution, which mandates that a person who is arrested must be produced before a magistrate within 24 hours of the arrest. Section 43 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which defines arrest and stresses the deprivation of liberty whether the physical restraint or submission to police authority constitute an arrest. Third, Section 60, Clause 1, Clause CCC of the CPC, which deals with the protection of property from being auctioned to satisfy maintenance dues. Case laws involved. First, D.K. Basu vs. State of West Bengal. This case is a landmark judgment where the Supreme Court laid down guidelines to prevent custodial torture and abuse, highlighting the importance of recording an arrest at the time it occurs. Second, Joginder Kumar vs. State of UP. This case enforced the principle that no person should be subjected to unlawful detention and that their fundamental rights must be protected, especially the right to be informed to the reasons for their arrest and the right to consult a legal practitioner. It's the time for practice question. Which of the following statements correctly reflects the Kerala High Court's ruling regarding the 24-hour detention period for producing accused before a magistrate? Option A, the 24-hour period starts when the formal arrest is recorded. Option B, the 24-hour period starts when the accused is brought before the magistrate. Option C, the 24-hour period starts when the accused's liberty is effectively curtailed regardless of the formal arrest. Option D, the 24-hour period starts when the arrest memo is prepared. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है हिरासत की उल्टी गिनती गिरफ्तारी से नहीं बल्कि हिरासत से शुरू होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्वजीत मंडल बनाम इंस्पेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए 24 घंटे की हिरासत अवधि, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत उल्लिखित है, हिरासत उस समय से शुरू होती है जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावी रूप से सीमित हो जाती है, न कि जब पुलिस द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की जाती है। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। याचिकाकर्ता को 25 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे मादक पदार्थ के कब्जे का पता चलने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी द्वारा हिरासत में लिया गया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी का ज्ञापन लगभग 23 घंटे बाद 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे तैयार किया गया। इसके बाद उन्हें 26 जनवरी को रात 8 बजे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जो उनकी प्रारंभिक हिरासत के 29 घंटे से अधिक समय बाद था। याचिकाकर्ता ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए दावा किया कि एनसीबी ने संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को पेश करने के 24 घंटे के नियम का उल्लंघन किया है। अब आइए जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों को। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करने की 24 घंटे की अवधि
उस समय से शुरू होती है जब उसकी स्वतंत्रता पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अभियुक्त के हिरासत में होने के बावजूद गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी हिरासत की अलिखित अवधि मानी जाएगी। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि इस तरह की देरी का इस्तेमाल हिरासत में दुर्व्यवहार को छिपाने के लिए किया जा सकता है और गिरफ्तारी दर्ज न करना या उचित दस्तावेजों के बिना पूछताछ को लंबा खींचना मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अदालत ने आगे जोर देकर कहा कि मौलिक अधिकारों, खासकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकारों की हर समय रक्षा की जानी चाहिए। आइए अब जानते हैं शामिल प्रावधानों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) यह अनुच्छेद यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 43 गिरफ्तारी को परिभाषित करती है और इस बात पर जोर देती है कि स्वतंत्रता से वंचित करना चाहे शारीरिक संयम द्वारा हो या पुलिस प्राधिकार के अधीन होकर गिरफ्तारी माना जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC की धारा 60(1) CCC रख रखाव बकाया को पूरा करने के लिए संपत्ति को नीलाम होने से बचाने से संबंधित है। आइए अब जानते हैं संबंधित कानूनों के बारे में। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 1 SCC 416। यह मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में यातना और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए तथा गिरफ्तारी के समय ही उसे दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश डाला। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 4 SCC 260। इस मामले ने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, विशेष रूप से उनकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और एक कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करने के 24 घंटे की हिरासत अवधि के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को सही ढंग से दर्शाता है? विकल्प ए 24 घंटे की अवधि तब शुरू होती है जब औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की जाती है। विकल्प बी 24 घंटे की अवधि तब शुरू होती है जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। विकल्प सी 24 घंटे की अवधि तब शुरू होती है जब अभियुक्त की स्वतंत्रता पर प्रभावी रूप से अंकुश लगा दिया जाता है, चाहे औपचारिक गिरफ्तारी कुछ भी हो। विकल्प डी 24 घंटे की अवधि गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार होने के बाद शुरू होती है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।